Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where again the plan today is to take the chapter of Bill of Exchange one step ahead by practicing one additional sum. Okay, आज तक जो हमने सॉल्व किया है, हमने ड्रॉवर के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने लिए थे उसमें हमेशा एंड में जो भी वो पूछते थे इन द बुक्स ऑफ, वो ड्रॉवर ही होता था. आज देखते हैं कि अलग क्या है. ओके, ऊपर दिया गया है, ऊपर मतलब क्वेश्चन में, स्नेहा रिसीव्स मेघाज एक्सेप्टेंस. अच्छा, दो लोगों का तो वर्णन किया गया है, एक है स्नेहा, एक है मेघा. क्वेश्चन, मैं कौन हूँ? मैं स्नेहा हूँ कि मैं मेघा हूँ? वापस पढ़ लो. स्नेहा रिसीव्स मेघाज एक्सेप्टेंस. मेघा ने क्या एक्सेप्ट किया? ये चैप्टर में और क्या एक्सेप्ट करोगे? कोई थोड़ी शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, वो भी होता है बट ये चैप्टर में तो नहीं होता. तो मेघा ने बिल एक्सेप्ट किया है, स्नेहा ने उससे ले लिया, तो वो हमको ये बताता है कि स्नेहा ड्रॉवर है, मेघा ड्रॉई हो जाएगी. ओके, फॉर 15,000 बिफोर due date of the bill, Megha approaches Sneha with a request to accept 5,000 before due date of the bill and draw a fresh bill on her for the balance for 3 months. तो मतलब ये डायरेक्टली रिन्यूअल स्टार्ट हो गया, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 8%. तो इंटरेस्ट 8% का है और वो 3 महीने के डिले के लिए कैलकुलेट किया जाएगा. तो बेसिकली सेकेंड लाइन में ही सीधे सीधे रिन्यूअल आ गया. स्नेहा अग्रीज एंड ड्रॉज अ फ्रेश बिल विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय मेघा. ऑन द ड्यू डेट मेघा मीट्स द बिल. मीट्स द बिल मतलब उसने पेमेंट कर दिया, सिंपल सी बात. ओके, ये एकदम शुरुआत में हमने किया है, जिसको हम ऑनर ऑफ द बिल कहते हैं. क्वेश्चन, कंफ्यूजन. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्नेहा. स्नेहा तो ड्रॉवर है, समझ में आया. जर्नल जो नॉर्मली करते हैं, मतलब हमको 2 पेज का नॉर्मल जर्नल लगता है, और उसके अलावा जो हमारी डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह होगा. वो स्नेहा है ड्रॉवर, ये मेघा है ड्रॉई मतलब बायर. अलग क्या है, पढ़ो. एंड प्रिपेयर, और कुछ काम किया है. स्नेहाज अकाउंट, अच्छा ये क्या है? देखो, ये है लेजर अकाउंट, जिसमें 2n by आप करते हो ना, इन द बुक्स ऑफ मेघा. अभी कंफ्यूजन,
अरे इन द बुक्स ऑफ दो बार दिया है। पहला बोला इन द बुक्स ऑफ स्नेहा, फिर बोला इन द बुक्स ऑफ मेघा। तो भाई हम कौन है? हम स्नेहा है कि मेघा है? देखो आपको ये सम में ना थोड़ा अजूबा बनना पड़ेगा, बिकॉज इसमें दो काम करने हैं, एक जर्नल और एक लेजर, दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप जर्नल सॉल्व करो तो आपको स्नेहा बनना है, ड्रॉवर। बट जब आप लेजर मतलब ये जो दिया है ना, प्रिपेयर स्नेहा अकाउंट, ये एक लेजर होता है। इन द बुक्स ऑफ मेघा, तो आपको मेघा भी बनना है, स्नेहा भी बनना है और मेघा भी बनना है। आई नो थोड़ी कंफ्यूजन है। पहले एक काम करते, जो शुरुआत है जर्नल इन द बुक्स ऑफ स्नेहा ड्रॉवर, उतना तो कर लेते। क्या है ना, जब हमको सब कुछ नहीं आता, थोड़ा कुछ आता, तो उतना थोड़ा तो कर लो, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाएगा तो बाकी का काम भी हम लोग हैंडल कर लेंगे। ओके, तो पहले तो हम ये जो क्वेश्चन है उसको स्नेहा के एंगल से जर्नल्स में कंप्लीट करते हैं। बढ़िया है, स्टार्ट करते हैं। वो जो लेजर है उसका अपन स्टोरी बाद में सुनते हैं। ओके, स्नेहा रिसीव्स मेघाज एक्सेप्टेंस फॉर 15,000। तो देखो भाई ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इसमें कोई डेट नहीं है। हमने बिल बनाया, मेघा ने साइन करके दिया, हमने रिसीव किया, तो बिल रिसीवेबल टू मेघा, फर्स्ट हमारी जर्नल एंट्री जो 15,000 के लिए है, हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। ओके, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, सिंपल नंबर 1। आगे क्वेश्चन में दिया है बिफोर ड्यू डेट। अब हमको सोचने की जरूरत नहीं ड्यू डेट क्या है। मेघा अप्रोचेस स्नेहा विद अ रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट 5,000। तो मेघा पूरा 15,000 नहीं दे सकती है। मेघा हमारे पास एक रिन्यूअल का रिक्वेस्ट लेकर आई और क्या बोली, देखो ओल्ड बिल 15,000 का है, आप ना 5,000 रखो, 5,000 रखो, और नया बिल वो बाद में ना 10,000। अच्छा, इंटरेस्ट की दर, क्योंकि इंटरेस्ट का पिछले 2-3 लेक्चर से बहुत कंफ्यूजन है, कैलकुलेशन करा रहे, 8 फॉर्मूला करा रहे, और वो मैं करता भी नहीं हूँ, मैं आपको काम दे देता हूँ। कैश में ऐड करूँ कि न्यू बिल में ऐड करूँ, बहुत लोग को डाउट है, आज थोड़ा वो क्लियर हो जाएगा। कैश में ऐड करूँ कि न्यू बिल में ऐड करूँ? मैं बोल रहा हूँ तुम मेरी मत मानो, तुम क्वेश्चन पढ़ो। ओके, पढ़ते हैं। एंड ड्रॉ फ्रेश बिल, ओके, नया बिल फॉर द बैलेंस, हाँ 10,000 फॉर 3 months इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अच्छा, तो फ्रेश बिल में इंटरेस्ट ऐड करना है, जी हाँ, कैश के साथ नहीं, फ्रेश बिल में। सर 200 किधर से आया? वो तो 8 फॉर्मूला, पिछली बार भी आपको बोला, उसके पिछली बार भी बोला, आपको 8 फॉर्मूला यूज करना है। कैसे करेंगे? देखो, कैलकुलेशन हमेशा नए बिल पर 10,000, कितना रेट कहा उन्होंने क्वेश्चन में, देख लो आप, क्वेश्चन में कहा उन्होंने 8%, और ये नया बिल कितने मंथ का है? 3 मंथ का। तो नया बिल का जो अमाउंट है वो डिले हो जाता है, तो उसके लिए आप इंटरेस्ट ले रहे हो ड्रॉई से, तो उसके ऊपर 10,000 के ऊपर आपको 3 महीने के लिए 8% का कैलकुलेशन करना। ये 8 फॉर्मूला है, 10,000 इंटू 8%, 8/100 इंटू 3/12। जैसे ही आप वो कैलकुलेशन करोगे आपको सामने 200 आ जाएगा, और ऐड करके आपका बिल 10,200 का बन जाएगा। पिछले 3 लेक्चर से, आज का और पिछला 2, सारे क्वेश्चंस में इंटरेस्ट का उन्होंने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, सीधे नहीं बोला, बोला आप कैलकुलेट करो। आपको हमेशा 8 फॉर्मूला करना पड़ा, और 8 फॉर्मूला में हमेशा आपको जो नया बिल है उसी को लेना है, क्योंकि वो डिले हो गया, 2 महीना आगे, 3 महीना आगे, तो उसी के ऊपर आप हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, इंटरेस्ट को लेना कब है वो आपकी मर्जी है, आप कैश के साथ भी उसे जोड़ सकते हो या न्यू बिल के साथ में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ऐड किधर किया गया है। हमें
4 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप है मेघा को बिल दे दो, दे दिया। यहाँ पे कोई बैंक का चक्कर नहीं है। तो पहला एंट्री जो अगर हम कभी क्लासरूम में होते तो मैं आपसे ज़रूर पूछता, मेघा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये बीइंग बिल कैंसिल्ड फॉर रिन्यूअल। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट जर्नल एंट्री। दूसरा इंटरेस्ट का है, मेघा टू इंटरेस्ट, क्योंकि ये काफ़ी बार हमने किया है तो मुझे कोई लंबा कहानी इस पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है वसूली का, और वसूली मतलब जो कैश में होता है ना, एक बार हमने वो वसूली, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा क्रॉस्ड चेक, हमने बैंक लिख दिया था, यहाँ पे तो कैश ही होगा। कैश टू मेघा, आप अगर बिल पढ़ो, कैलकुलेशन पढ़ो तो 5000 आपको दिखेगा, तो मैं वही लिख देता हूँ। ओके, अपने मर्जी से थोड़ी कुछ लिख सकता हूँ मैं। ओके, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव, और नए बिल के साथ इंटरेस्ट जुड़ रहा है। नए बिल की एंट्री क्या आती है? देखो भाई, हमने बिल बनाया, उन्होंने साइन करके हमको दे दिया, बिल रिसीवेबल टू मेघा, बिल रिसीवेबल टू मेघा। ये हुआ फोर्थ स्टेप ऑफ द रिन्यूअल प्रोसीजर, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। व्हेनेवर यू थिंक आई एम गोइंग फास्ट, जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो आप खुद से सॉल्व करो, ना कि यहाँ से कॉपी करो, बट खुद से सॉल्व करो। 4 स्टेप हो गए, हमारे पास नया बिल आ गया 10,200। और क्या करना है? क्वेश्चन में देखो, पढ़ो ना, ऊपर क्या बोला, ऑन द ड्यू डेट। अच्छा, जब नया बिल का पेमेंट का टाइम आया, मेघा मीट्स द बिल। व्हाट इज दिस मीट्स द बिल? उसने पैसे दे दिए, पहले नहीं दिए, पहले देंगे तो रिटायरमेंट, टाइम पे दिया तो कैश आया, हमने बिल दे दिया, बीच में कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, तो डिस्काउंट रिबेट बिल्कुल नहीं आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। प्लीज याद रखना, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन ये सीक्वेंस में लिया कि इसके पहले आपने रिटायरमेंट किया है, रिटायरमेंट में यही एंट्री आती है, बट बीच में गैप आता है, उसको हम डिस्काउंट लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन का आधा सोल्यूशन है, पूरा नहीं है, आधा सोल्यूशन। इसका टोटल आ गया 55,600। बाकी सोल्यूशन क्या है? देखो, ये अगर आपने लिख लिया, ये ड्रॉवर का है। फॉर द पास्ट 4-5 lectures we have been concentrating on that, but today the question is asking you something more. It's saying prepare Sneha account in the books of Megha. So the question is, what does Sneha account mean? This one, ledger, ये आपको दिखता है, स्नेहा डेबिट क्रेडिट। बट टू प्रिपेयर स्नेहा अकाउंट you must have journal entries with स्नेहा in it. मतलब अभी भी तो किया जर्नल एंट्रीज, हाँ गलत नहीं बोल रहे हो, बट जो जर्नल एंट्रीज आपने किए उसमें तो मेघा है, तो मेघा था तो मेघा लिखा। तो प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्वेश्चन ने गूगली कहाँ पे डाली है। अगर वो कहते मेघा अकाउंट तो बड़े आसानी से बन जाता, क्योंकि हमारे पास उसके जर्नल एंट्रीज थे, बट उन्होंने कहा कि स्नेहा अकाउंट बनाओ। अभी स्नेहा अकाउंट के लिए स्नेहा के जो जर्नल एंट्रीज होने चाहिए वो आनी चाहिए, बट वो तो नहीं है हमारे पास, तो क्या करें? तो यहाँ पे थोड़ा गेम बदलता है। ये एग्जामिनर ने ऐसा दाव पेज लगाया है कि पहले उन्होंने आपको ड्रॉवर का सॉल्व करने को कराया, हमने करा दिया, और अभी मजबूरी से, क्योंकि आपको स्नेहा लेजर करना है, स्नेहा अकाउंट, यू हैव टू सॉल्व इन द बुक्स ऑफ मेघा, दैट इज बायर। आई रिपीट, दिस इज द कंफ्यूजिंग पार्ट, वेल नॉट द कंफ्यूजिंग पार्ट, द एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। सर पूरा सम तो पढ़ लिया हमने, सॉल्व भी कर लिया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, अभी क्या एक्स्ट्रा काम करें? लाइक आई से, अगर आपको एग्जामिनर को कोई बहाना देना नहीं है मार्क्स करने का, और यहाँ पे तो करीबन ये 3 या 4 मार्क का है, 3 to 4 marks, तो इट्स अ लॉट मोर वैल्यूएबल। यू हैव टू सॉल्व द होल प्रॉब्लम अगेन विथ थिंकिंग दैट यू आर मेघा, दैट मीन्स
draw E buyer. Can you see the diagram above me? This is the different diagram. यहाँ पे स्नेहा इज द सेलर, हम उसके दुकान में नहीं हैं, हम मेघा बन गए हैं और हम मेघा की दुकान में हैं। तो क्या अलग है? देखिए परचेस है, कैश तो वही होता है, सेल्स का परचेस हो गया, बिल रिसीवेबल का बिल पेएबल और इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है। तो सेल का उल्टा हो गया, बिल रिसीवेबल का उल्टा हो गया। बट याद रखना आपकी थिंकिंग बदल गई या बदली आपको करनी पड़ेगी। आप अभी मेघा हो, आप स्नेहा नहीं हो। पूरी कहानी वापस से सॉल्व करनी है, डोंट वरी, इतना टाइम नहीं जाएगा। बट क्योंकि उन्होंने कहा स्नेहा अकाउंट बनाओ, स्नेहा के जर्नल एंट्रीज हमारे पास आनी चाहिए। वो कैसे आएंगे? चैनल चेंज, रेडियो का फ्रीक्वेंसी चेंज, ओके, यूट्यूब का चैनल चेंज करो, मतलब सॉरी ये वाला चैनल में चेंज करना, ओके हाँ। बट आप अभी ड्रोवर नहीं, ड्रोई बन के सोचो। तो ओके फाइन, अभी मैं मेगा हूँ, अभी ये सम में सॉल्व कैसे करूँ? देखो सम वही है, आपका क्या है, थिंकिंग बदल गया, एंगल बदल गया, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। हाँ, स्नेहा रिसीव्स मेघा's acceptance for 15,000, मीनिंग अरे ये स्नेहा है ना, इसने मेरे पे बिल बनाया, सेम डॉटेड लाइन, इसने मेरे पे बिल बनाया, मैं ना साइन करके दे दिया, तो ये तो एंट्री है। हाँ, तो ये पहले भी तो की, बट प्लीज याद रखना पहले के डायग्राम में जो आपने सॉल्व किया मैं दिखा देता हूं, और अभी जो डायग्राम बदली हुआ उसके वजह से जो आप एंट्री करने वाले हो वो भी दिखा देता हूं, वो अलग है। थिंकिंग सेम, डायग्राम सेम, डायग्राम सेम मतलब एरो एरो एरोबाजी से, बट ऑटोमेटिकली क्योंकि जो नज़ारा है वो बदल गया, आंसर बदल गया। यहाँ पे स्नेहा को पॉइंट कर रहा है, स्नेहा डेबिट, बिल पेएबल क्रेडिट। तो प्लीज वो ऊपर देख लीजिए, पहला जर्नल एंट्री। इसके बाद में आप यू कैन आस्क एंड यू शुड आस्क कि सर हमको क्या करना है। देखो आपको जो स्नेहा के जर्नल्स थे उसके लिए मार्क्स मिलेगा, और ये जो स्नेहा का लेजर है उसके लिए मार्क्स मिलेगा। बट इसके लिए ऊपर जो मेघा है उसका जर्नल रफ वर्क है, क्योंकि वो रफ वर्क है उसमें मैं कोई भी नरेशन नहीं लिख रहा, क्योंकि उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगी। तो हमको टाइम बचाना है, रफ वर्क है, यहाँ पे टाइम नहीं बचाना, यहाँ पे मार्क्स। बट इसके लिए हमको ऊपर वाली एंट्रीज चाहिए, क्योंकि स्नेहा का जब तक जर्नल नहीं आएगा तब तक लेजर टू एंड बाय सॉल्व नहीं हो पाएगा। ओके, पहला तो हो गया। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ लो, वही क्वेश्चन है। बिफोर ड्यू डेट ऑफ द बिल, मेघा मतलब हम, अप्रोचेस स्नेहा, हम स्नेहा के पास गए विद रिक्वेस्ट, प्लीज़ 5,000 ले लो, बाकी का पैसा बाद में लेना, आप इंटरेस्ट भी ले लो 12%, सॉरी 8%, 3 महीने का। ये पूरी कहानी प्लीज़ याद रखिए, हमने सॉल्व की है, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन है। मैथ्स, नंबर, ड्रॉवर का हो या ड्रॉई का हो, बदलता नहीं है। ओल्ड बिल, कैश, न्यू बिल, इंटरेस्ट सब तामझाम से, सिर्फ डेबिट क्रेडिट बदलता है। डेबिट क्रेडिट, मेरे लिए सेल, तेरे लिए परचेज, मेरे लिए बिल रिसीवेबल, तेरे लिए बिल पेएबल, मेरे लिए 800, हाँ तो तुम्हारे लिए भी 800। तो प्लीज याद रखिए यही यूज करो इन्फॉर्मेशन, और 4 एंट्रीज करो। किसका? रिन्यूअल का। अच्छा, पहला एंट्री क्या है? बिल को कैंसिल करो। कौन बिल कैंसिल करेगा? स्नेहा। तो स्नेहा ने बिल कैंसिल किया और हमको दे दिया, हमने ले लिया। बिल पेएबल डेबिट टू स्नेहा, आपका दूसरा एंट्री, बिल पेएबल डेबिट टू स्नेहा। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा। हाँ, तो स्नेहा ने देखो हम पे इंटरेस्ट डाला, इंटरेस्ट टू स्नेहा। आपको ये सोचना है, मेघा बन के सोचना है, मेघा। ओके, तो इंटरेस्ट टू स्नेहा, बाकी पूरा कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी पहले ही कर दिया था। फिर हमने 5,000 दिए, हम मेघा है, हमने स्नेहा को 5,000 दिए, तो स्नेहा टू कैश। तो यू कैन सी कि जो जर्नल एंट्रीज है उसमें ऑटोमेटिकली जो वर्ड है वो स्नेहा का आ रहा है। बट एग्जामिनर ने ऐसा कुछ दावपेच गेम हमारे साथ खेला है कि हमको पूरा प्रॉब्लम ड्रॉवर और वापस से हमको पूरा प्रॉब्लम ड्रॉई में सॉल्व करना पड़ा है। फिर नया बिल, स्नेहा ने हम पे बिल बनाया, हमने साइन करके दे दिया। ओके, कितने का? 10,200 का। ओके, तो
स्नेहा टू बिल पेएबल, बिल पेएबल, गलती से बिल रिसीवेबल मत लिखना, गलती से बिल रिसीवेबल मत लिखना, बहुत बच्चे लिखते हैं क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस होता है ना। ओके, मत करना गलती, ओके मत करना। ओके, कहानी खत्म? नहीं नहीं नहीं, एंड में याद है कि मेघा ने पैसे दे दिए 10,200, नया बिल का पूरा पैसा दे दिया। कैसे? अरे ऑनर बोला मीट द बिल, मीट मतलब पेमेंट कर दिया, हमने पैसे दिए और हमको क्या मिलेगा सेलर से? हमारा बिल। तो हमने पैसा दिया, कैश गोज आउट, बिल कम्स इन। ओके, तो ऊपर आई नो बहुत ज़्यादा लाइन है, पर जो ब्लू लाइन है अगर आप उस पर ध्यान दो तो ये है कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल पेएबल कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो जर्नल एंट्री है वो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये था पूरा कहानी मेघा के थिंकिंग से। बट इतना जो तुमने किया ना उसका कुछ नहीं मार्क्स मिलेगा, मार्क्स मिलेगा तो नीचे स्नेहा का। नाउ वी हैव टू डू पोस्टिंग, ऊपर के जर्नल से नीचे के लेजर में। फर्स्ट लाइन हमेशा खाली रखना, फर्स्ट लाइन खाली, उसके नीचे 2 by 2 स्टार्ट करो। कैसे कैसे ध्यान दो। फर्स्ट, स्नेहा डेबिट टू बिल पेएबल, तो डेबिट साइड पे आपको लिखना है सेकेंड लाइन में टू बिल पेएबल कितना? 15,000। इसको पोस्टिंग कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने 11वीं में भी किया है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। ओके, ऊपर जर्नल नीचे लेजर, ऊपर डेबिट नीचे डेबिट करेगी, ऊपर क्रेडिट नीचे स्नेहा के अकाउंट। ओके, आगे सेकेंड, टू स्नेहा मतलब क्रेडिट, टू स्नेहा मतलब स्नेहा को क्रेडिट करना है। ओके, तो बिल पेएबल ऑपोजिट में है तो क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय बिल पेएबल 15,000। इसको पोस्टिंग कहते हैं। ये हम जो पहले जर्नल था उससे नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे स्नेहा का नाम आता है उसी को देखकर हम कर सकते हैं। तीसरा, टू स्नेहा मतलब फिर से क्रेडिट साइड पर, तो क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें डेट नहीं है, हमने कोई डेट लिखा नहीं है और 1 2 3 भी लिखने की जरूरत नहीं, डेट होता तो लिख देते 200। फिर चौथा, स्नेहा डेबिट 5,000, तो डेबिट में लिख लेते हैं टू कैश 5,000। तो सिंपल, पोस्टिंग सिंपल है, बट पोस्टिंग ये लेजर करने के लिए जो मेहनत हमको करनी पड़ती है रफ वर्क में ऊपर का, वो मेहनत काफ़ी तगड़ा है। पांचवा, स्नेहा डेबिट 10,200, तो फिर से डेबिट कर लेते हैं जी टू बिल पेएबल 10,200। और छठा, बेस्ट, क्या सर स्नेहा तो है ही नहीं 6th में, कुछ नहीं करना तुमको, क्योंकि अगर स्नेहा का नाम होगा तो ही पोस्टिंग होगा, स्नेहा का नाम नहीं होगा पोस्टिंग नहीं होगा। आगे जाके ये जो चैप्टर है ना ये काफ़ी लेफ्ट राइट होने वाला है। व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग, लास्ट लाइन बराबर से सटीकता से पढ़ लेना, केयरफुली बारीकी से। ड्रॉवर बोला ड्रॉई बोला, जर्नल बोला लेजर बोला, क्या बोला, क्योंकि आगे जाके पूरा गेम चेंज होता रहेगा, मिक्स एंड मैच होता रहेगा। रीड इट वेरी केयरफुली अगर आपको चैप्टर में पूरे मार्क्स चाहिए। ओके, अभी क्या करें स्नेहा का, अभी टोटल करो। डेबिट हैवी है, ओके 3200, और क्रेडिट में डिफरेंस है, बट वो डिफरेंस बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में प्लीज फर्स्ट लाइन में लिखो। ओके, एक मिनट, हाँ मेरे को थोड़ा आपको कुछ बोलना पड़ेगा, बोल रहा हूँ, आप ध्यान दें। नॉर्मली आप बोलोगे सर डिफरेंस तो नीचे आता है, तो भी ऐसा क्यों आपके ऊपर लिखा रहे हो 15,000 का डिफरेंस? 3200 माइनस 15,200, 15,000, और ऊपर क्या आता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर ये क्या चक्कर? बिकॉज नॉर्मली वी गेट प्रॉफिट लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ पर्सन's अकाउंट। स्नेहा इज अ पर्सन, इंसान। इंसान के साथ कोई या तो कुछ देना है या तो कुछ लेना है, बैलेंस। ये मेरा इतना पैसा बाकी है, मेरा उतना पैसा बाकी है, चल देना, क्लियर करना। सो इन अ पर्सनल अकाउंट यू विल नेवर गेट प्रॉफिट लॉस, नहीं, इन अ पर्सनल अकाउंट यू विल नॉट गेट प्रॉफिट लॉस एज द आंसर। ओके, यू विल ऑलवेज गेट बैलेंस, बट वो बैलेंस नीचे मत लिखना, फर्स्ट लाइन में। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दो
सबसे पहले लाइन में क्वेश्चन में क्या बोला था, वेरी इंपॉर्टेंट, स्नेहा रिसीव्स मेघाज एक्सेप्टेंस फॉर 15,000। कभी सोचा है क्या ये मेघा ने बिल साइन क्यों किया रे? मेघा ने बिल साइन क्यों किया? ऐसे कुछ खरीदा ही नहीं माल और साइन किया। देखो खरीदने का काम 1-2 महीने पहले हो गया होगा, तो ऑब्वियसली कोई भी बेवकूफ नहीं है कि बिल पे साइन करके देगा, ले मैं तेरे को 15,000 दो महीने के बाद दूंगी। कोई बेवकूफ नहीं है ऐसा। ओके हाँ, तो आई रिपीट माई सेल्फ कि मेघा ये जानती है कि उसको स्नेहा को 15,000 देने हैं। कैसे जानती है? क्योंकि मेघा ने अपनी किताब में स्नेहा का एक अकाउंट बनाया है और उसके फर्स्ट लाइन में बैलेंस दिखता है 15,000 का। आप बोलोगे सर वो तो अभी आया। हाँ, हम तो उल्टी कहानी कर रहे हैं ना, जब ये सॉल्व होता है ये तो फर्स्ट लाइन से सॉल्व होता है। तो मेघा दैट इज द बायर नोज, अरे स्नेहा के अकाउंट में 15,000 क्रेडिट है, मतलब वो मेरी क्रेडिटर है। पर्सनल अकाउंट, वो मेरी क्रेडिटर है। जैसे दूध वाला अंकल क्रेडिटर होता है, न्यूज़पेपर वाला अंकल क्रेडिटर होता है, आपको पैसे देने हैं, उसी तरह आपको स्नेहा को 15,000 देना है। कैसे पता चला? देखो ना, बैलेंस करके पता चला। ये चैप्टर में बैलेंस नीचे मत लिखना, फर्स्ट लाइन में, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस होता है। उसकी वजह से ये बैलेंस को रफा दफा करने के लिए मेघा ने बिल साइन करके दिया। प्लीज ये चैप्टर में याद रखें, जब भी लेजर पूछे फर्स्ट लाइन खाली रखें, और अगर बैलेंस आता है डेबिट में लिख ले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या क्रेडिट में लिख ले, लास्ट लाइन में बैलेंस ना लिखे। अगर डेबिट में बैलेंस आता है मतलब वो इंसान एक डेटर है, और क्रेडिट में बैलेंस आता है तो वो इंसान हमारे लिए एक क्रेडिटर है, और उसके लिए ही आगे जाके बिल बनता है और आगे की ड्रामा, आगे स्टोरी जाती है। ओके, जब तक आप वो लेजर ना बनाओ तब तक तो आपको भी पता नहीं चलेगा। सो आगे क्वेश्चंस में प्लीज ध्यान रखना कि ड्रॉवर के ड्रॉई, जर्नल के लेजर, किसका पूछा है। जब तक आप वो लास्ट का लाइन ना पढ़ो आपको कभी भी समझ में या तो क्लैरिटी नहीं आएगी, ड्रॉवर करना है कि ड्रॉई करना है। भले ही ये क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल ज़्यादा नहीं था, बट क्योंकि इस तरह के का लास्ट लाइन किया कि इसका जर्नल करो और लेजर भी करो, और द मोमेंट वो कहते हैं कि आपको लेजर स्नेहा का ही करना था, हमारा काम डबल बन जाता है। ऐसे करके आने वाले लेक्चर्स में बहुत बार ऐसे टेक्स्ट बुक से हमको क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर हमारा काम डबल हो जाएगा। क्या करें, मार्क्स के लिए तो हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आई होप ये आपको समझ आया है। समझ आया है तो कृपया करके लेक्चर को लाइक कर दीजिए। अगर यहाँ पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। पुराने हो तो हमारे लेक्चर्स का जो लिंक है दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए। जब तक हम दोबारा ना मिले, आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ जाए, ऊपर वाले की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।